students. Our students, today we shall start the third chapter from Hornbill, and the title of the chapter is Discovering Tet. The saga continues. Children, this chapter is written by A.R. Williams. As the title of the chapter suggests us, discovering Tet. Tet को खोजना. The saga continues. Saga means a long narrative story. एक लंबी कहानी जो अभी तक जारी है, कंटिन्यू है. In this chapter we shall come to know who Tet was. जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेट कौन था. This chapter is written by A.R. Williams, and A.R. Williams had been a specialist in science and cultural heritage. She was awarded many times, and she devoted herself to solve ancient historical mysteries of the world. Actually, students, in this chapter, the author tells us about King Tut. The whole of the story revolves around King Tut, who was the king of Egypt. बच्चों, इजिप्ट मिस्र देश को कहते हैं. ये जो पूरी स्टोरी, पूरा जो चैप्टर है वो राजा टट के बारे में है, जो कि इजिप्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रूल किया करता था. उसका लास्ट है, उसका अंतिम उत्तराधिकारी. तो किंग टट के बारे में ऑथर ने बताया है. लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. वंस अपॉन ए टाइम a great civilization flourished in Egypt, and at that time a powerful royal family ruled over Egypt. The majestic tombs were left, the rulers were mummified. Tut was the last ruler of the royal family. Howard Carter discovered his tomb. देखिए, इसमें ऑथर ने हमें बताया है कि एक बार इजिप्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रूल किया करती थी. कई शताब्दियों तक उसने इजिप्ट में रूल किया, और ऐसा माना जाता है कि टुट वाज द लास्ट ईयर ऑफ दिस डायनेस्टी. राजा टुट इस डायनेस्टी का अंतिम उत्तराधिकारी था और रूलर. तो ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के लंबे समय के बाद हॉवर्ड कार्टर ने उसके टॉम को डिस्कवर किया. हॉवर्ड कार्टर ने उसके मकबरे को खोला. So children, now we are going to start the text of this chapter. See the text of this chapter. He was just a teenager when he died. अब देखिए कहता है कि he was just a teenager. Teenager stands for in his teens. देखिए, वो किशोर अवस्था में था जब उसकी मृत्यु हुई. The last year of a powerful family
that had ruled Egypt and its empire for centuries. देखिए, I have already told you that Tut was the last heir of a powerful family. Tut एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, उस पावरफुल फैमिली का जिसने इजिप्ट में और इसके एम्पायर में कई सेंचुरीज तक शासन किया, कई शताब्दियों तक शासन किया। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और विभिन्न सोने से बने हुए वस्तुओं के साथ उसे दफना दिया गया, उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया। किंग टुट को उसकी मृत्यु के बाद उसे विभिन्न सोने की वस्तुओं से लेडन किया और उसे बरी कर दिया और अंत में उसे बुला दिया एंड इवेंचुअली forgotten. Since the discovery of this tomb in 1922, the modern world had speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब देखिए कि ईयर 1922 में जब उसके मकबरे को खोजा गया तो उसके बाद the modern world had speculated, the modern world has thought about what happened to him. आधुनिक संसार ने उसके बारे में सोचा कि उसके साथ क्या हुआ, with murder being the most extreme possibility, और मर्डर को ही एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी माना गया। ये माना गया कि राजा टट की मृत्यु की जो वजह थी वो मर्डर थी। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब देखिए, after the discovery of his tomb and after 80 years, अब उसके टॉम को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टुट का CT स्कैन हुआ और जब उसका CT स्कैन हुआ तो उसके लाइफ एंड डेथ के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग मिले। We have come to know about new clues about his life and death. तथा ठीक जानकारी मिली and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the wise pharaoh. और देखिए उस वॉइस फेरो के बारे में। फेरो एक्चुअली, फेरो इज द किंग ऑफ इजिप्ट। फेरो इजिप्ट के किंग को कहते हैं, सम्राट को कहते हैं, मिस्र देश के सम्राट को फेरो कहते हैं। तो जब किंग टुट की बॉडी को CT स्कैन करवाया गया तो वी हैव कम टू नो अबाउट सो मैनी क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ दैट प्रोवाइड्स डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन अबाउट हिम। तो देखिए, टुट का CT स्कैन हुआ जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले तथा ठीक जानकारी मिली फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, जिससे
ये जो बालक था वो आया था फेरो, इसकी वैज्ञानिक जांच हो सके। So students, that in this paragraph we have come to know that Toad's tomb was discovered in 1922, and in the next paragraph we shall read who discovered Toad's tomb। और अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि टूट के टॉम को किसने डिस्कवर किया। Now come to the second paragraph। An angry wind stirred up ghostly dust devils as kings. As King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. As we know that King Tut was the royal heir of the strong and powerful family। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, राजा तुत एक पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था, एंड दैट वाज द ओनली रीजन ही वाज बरीड इन द वैली ऑफ द किंग्स। और यही कारण था कि उसे वैली ऑफ द किंग्स में दफन किया गया था। तो देखिए, जब उसके रेस्टिंग प्लेस से उसकी बॉडी को डिस्कवर किया गया, तो यहाँ पर ऑथर हमें कुछ अननेचुरल एलिमेंट के बारे में बताता है। डिफरेंट अननेचुरल हैपनिंग अकर्ड। तो एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डिविल्स। देखिए, बहुत तेज उत्पन्न होने वाली हवाएं, क्रुद्ध पवन, एंग्री विंड ने जैसे भूतों जैसे धूल के शैतान खड़े कर दिए जब राजा तुत को उसकी कब्र, जहाँ पर थी, जिसे कि वैली ऑफ किंग्स कहकर पुकारा जाता था, राजाओं की घाटी कहकर पुकारा जाता था, उसे जब वहाँ से बाहर निकाल दिया। So at once this unnatural happening occurred, and meaning that by the angry wind at once rose the dust of devils। और एकदम क्रुद्ध पवन, क्रुद्ध हवाएं चलने लगी, और उन क्रुद्ध और एंग्री विंड में ऐसा लगता था मानो कि धूल जैसे डीविल्स को खड़ा कर दिया। डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड स्कैटर्ड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे। और पूरे दिन काले बादल छाए रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड टुडे। और ऐसा लग रहा था कि जो आसमान था बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया था, और तारों को सुरमई पटारी में छुपाए हुए था। It was 6 p.m. on January 5, 2005. It was the day of January 5, 2005। देखिए, 5 जनवरी 2005 को लगभग शाम के 6 बजे का समय था। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब देखिए,
ऑथर हमें बताते हैं कि 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, जैसा कि हम जानते हैं कि इजिप्ट में डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने की प्रथा थी, मम्मी फाइट करने की प्रथा थी, तो इसीलिए राजा टट की जब मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी को भी मम्मी फाइट किया था। तो ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मीज़ में से एक मानी जाती थी। तो 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से सीटी स्कैनर में धीरे धीरे अंदर गई और इस स्कैनर को इस युवा शासक, जिसका नाम टुट था, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले हुई, 300 ईयर्स पहले हुई, से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया। सीटी स्कैनर में इसे इसलिए लाया गया कि जिससे इसकी लाइफ एंड डेथ के बारे में सही जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो संसार के सामने लाई जा सके। So students, we shall go through the next lecture in the next video. Thank you.